درست کرنا ہے تاکہ ہم بھی مسیح جیسے بن جائیں. جس طرح کہ مسیح نے امن جو ہے کیا، ہمارے اندر جو ہے وہ ایک ایسی شرارت کی روح ہوگی تو ہم کیا کریں گے، کبھی بھی ہم برکت نہیں پا سکتے، کبھی بھی ہم جو ہے اپنے آپ کو بلند نہیں کر سکتے. سو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم بچ جائیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم جو ہے ان روحوں سے بچ جائیں. اگر دوسرے باب کی 11ویں آیت ہم دیکھیں، یہ سایہ دوسرا باب اس کی 11ویں آیت پہ ذرا غور کریں. لکھا ہے انسان کی اونچی نگاہ نیچی کی جائے گی. کیا ہوگا؟ تکبر ہی ہے نا، شرارت کی روح ہے. اور یہ بد چلنی بھی جو ہے یہ بھی شرارت کی روح ہے، یہ بھی شریر کا کام ہے. اور پھر لکھا ہے چال چلن خداوند کے خلاف ہیں کہ اس کی یہ اس کی ہے تیسرے باب کی بول چال اور چال چلن ہوتا ہے انسان کا کریکٹر. یہ وہ والا چال چلن نہیں ہے کہ ہم پیدل چل رہے ہیں، یہ چال چلن کریکٹر کی بات ہو رہی ہے. ہمارا کریکٹر، ہمارا کردار جو ہے یہ اچھا ہونا چاہیے تو ہم برکت پائیں گے. اور اگر ہم ادھر دعا کریے تو بعد وہ خدا کو پسند نہیں. اس میں غصے میں آ کے میں بھی کر جاتا ہوں. آپ جو ہے ہم انسانوں میں ایک عام فطرت پائی جاتی ہے. تو میرے عزیزو، اس میں شریر جو ہے وہ شرارت کر رہا ہوتا ہے. جس طرح خدا نے تحمل مزاجی سے جو ہے صبر کیا، ہمیں بھی صبر کرنا ہے، ہمیں بھی پر امن خدا بھی چاہتا ہے. جس طرح یہ سایہ مسیح کے بارے میں پیشن گوئی کر رہا ہے کہ ایک امن کی کونپل نکلے گی، تو اس وقت ہمارے اندر سے بھی ایک امن کی کونپل نکلے گی جب ہم کیا کریں گے، شریری باتوں پر غالب آئیں گے. پہلے تو شریری باتوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. اس کو کونپل جو جڑ جو ہوتی ہے نا، جڑ تنا ایک ہوتا ہے، اور اس کا جو اوپر والا پھول جو ہوتا ہے نا، پھول اسے بولتے ہیں کونپل، جو بڑا ابھی کھلتا نہیں ہے اور جو ہے ابھی کھل رہا ہوتا ہے، وہ کونپل ایک کونپل ہوتی ہے اور جو ہے بڑی نازک ہوتی ہے. اور بعض پھول تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہاتھ لگائیں تو وہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں. سو ہمیں یہ شریر کی شرارتوں کو جو ہے سب سے پہلے اس کو پہچاننا ہے کہ یہ ہے کون سی، یہ چال چلن جو ہے کیسا. خدا ہم سے چال چلن ایسا نہیں چاہتا. خدا چاہتا ہے کہ مسیح جیسے بنے. جس طرح ہم نے یسایہ کی کتاب میں اور بھی بے شمار پوری کتاب، پوری انجیل بھری ہوئی ہے. اگر چاروں اناجیل ہم دیکھیں، اگر دانییل کی کتاب دیکھیں، اگر حزقییل کی کتاب دیکھیں، ان سب میں پیشن گوئیاں ہوئی ہیں یسوع مسیح کے بارے میں. زبور پڑھ لیں. سو میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ ہم سے جو چاہتا ہے وہ ہم کرتے نہیں جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. پھر ہم شریر کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں. شرارت کی جو ہے روحیں ہم پر ہیوی ہو جاتی ہیں، ولولہ لے آتی ہیں، جیسا کہ ہم نے 3 باب اور اس کی 11ویں آیت میں ہم نے پڑھا. سو اس کے بعد جو ہے اگر ہم آگے پڑھیں تو چال چلن جو ہے آگے لکھا ہے خداوند کے خلاف ہے کہ اس کی جلالی آنکھوں کو غضبناک کرے. جب ہم ایسے کام کرتے ہیں، اپنے چال چلن کو کریکٹ نہیں رکھتے، یہ دور جو ہے کریکٹ رکھنے والا ہے. اپنے چال چلن کو زیادہ سے زیادہ کریکٹ رکھیں، اچھا رکھیں. چال چلن کا مقصد ہے کہ جیسا مسیح کا، میں وہی چال چلن کہہ رہا ہوں، اور وہ چال چلن جو ہے مسیح جیسا رکھنا، حلیم ہو جائیں، انصاف کرنے والے ہو جائیں. اگر اسی جو آگے ہم نے پڑھا ہے 11واں باب اور اس کی پہلی آیت سے اور اس سے آنورڈ اگر آگے پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ ہمیں خدا جو ہے حلیم اور انصاف کرنے آیا تھا.
پھر میکا کی کتاب اور اس کے 6ویں باب سے 8ویں آیت ہے، میرا خیال 8واں باب یا 6ویں آیت ہے، یا 6واں باب 8ویں آیت، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے شیئر کی تھی پہلے، کہ خدا ہم سے چاہتا کیا ہے۔ خدا ہم سے حلیمی چاہتا ہے، جو خدا نے نمونہ کا بن کے دکھایا۔ خدا ہم سے انصاف چاہتا ہے، ایسی امید رکھتا ہے خدا ہم سے کہ ہم شریر سے بچ جائیں، بدکاری نہ کریں، خون نہ کریں، جھوٹی گوائیاں نہ دیں، بد گوئیاں نہ کریں۔ سو میرے عزیزو، اس طرح پلوس نے بھی یسوع مسیح کی بہت ساری جو ہے وہ بتائی ہیں، کرنتھیوں کے خط میں بتائی ہیں، اور پھر کلسیوں کا خط اس میں بھی ابھی ہم پڑھتے ہیں، کلسیوں کے خط میں بھی بتایا گیا ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا ہم سے یہ چاہتا ہے۔ اور پھر اگر ہم دوسرا باپ یسایہ دوسرا باپ اور اس کی 11ویں آیت پڑھیں گے، انسان کی اونچی نگاہ نیچی کی جائے گی۔ اگر کوئی بڑا اونچا اپنے آپ کو سمجھا، میرے اگر بندہ ہی کوئی نہیں، آج میں بتا دوں خدا جو ہے وہ خدا ہم سے جو ہے ہمیں بچانا چاہتا ہے، لیکن ہم بچنا نہیں چاہتے۔ جیسے آج میں کسی کو پنچ نہیں کر رہا، نہ جو ہے میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ خدا کی حضوری میں کھڑا ہوں۔ خدا، یہ میں آج کل کے دور میں بتا رہا ہوں، خدا آزما رہا ہے مجھے، آپ کو، اور جو ہے آپ کے وسیلے دوسرے لوگوں۔ ابھی جس طرح جو ہے ایک بہن پانی لینے آئی، ٹھیک ہے، اور اگر ہم کہہ دیں کہ نہیں ہے، مطلب ہے کہ ابلیس کام کرتا ہے، وہ ہمیں اپنے جو ہے وہ دے رہا ہے کہ تو کی کریں گا، اپنی فکر میں ڈال رہا ہے۔ یسوع مسیح نے تو اپنی فکر نہیں کی تھی، جی اپنی کی تھی سولی تے چڑھ دا۔ یسوع مسیح ایسا نہیں چاہتا، لیکن ہم میں آج کل سب سے زیادہ یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ بعض کا ابھی میں تھوڑی دیر پہلے میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوا میرے ساتھ، ابھی ایک واقعہ ہوا، گھر میں پانی نہیں تھا، میں کسی کے گھر چلا گیا، مجھے یہی پتا ہے کہ نہیں تھا، جب ان کے گھر گیا تو انہوں نے باتیں شروع کر دی، اور جو باتیں شروع کی ہیں اس کے بعد مجھے آ کے پتہ چلا کہ میرے گھر میں تو پانی ہے۔ اب اس بات کا یہ دیکھیں کہ کیا مطلب ہے، خدا مجھے اس گھر میں لے گیا، انہوں نے آگے سے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ شاید ان کی یہ آزمائش چل رہی تھی۔ خدا جو ہے ایسے ہی آزماتا ہے۔ یہ میں نے بات شیئر نہیں کرنی تھی، لیکن بس ابھی وہ ٹاپک ہی اس طرح کا آ گیا کہ وہ مجھے شیئر کرنی پڑ رہی، لیکن یہ بات خدا اس طرح انسان کو وہ سمجھاتا ہے، آزماتا ہے۔ بہت سارے کام میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں بھی، آپ بچے جو ہیں ان کی زندگیوں میں آنے ہیں، کچھ نے فیس کیے ہیں، کچھ نے کر لیے ہیں، کچھ نے کرنے ہیں۔ سو میرے عزیزو، اپنے آپ کو جو ہے وہ مکمل کریں، اپنے آپ کو کوشش کریں جہاں تک ہو سکتا ہے خدا کے کلام کے مطابق چلیں، اس کے کلام کو پورا کریں۔ ہم انسان ہونے کے ناطے تو اس لائق نہیں ہیں، جو کہتا ہے میں اس لائق ہوں وہ اس فقی اور فریسی کی طرح ہے، جس نے کہا کہ میں دے یقینی دینا ہے، میں جڑا ہے دولت اور پیسہ تے غریباں تے یتیماں دینا ہے، لیکن اس کے کریکٹر جو تھے وہ خدا نے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں، خدا نے اس کو پسند نہیں کیا۔ خدا نے اس کو پسند کیا جس نے کہا کہ اے خداوند، میں نکما ہوں، میں ناچیز ہوں، میں حقیر ہوں، مجھ پر رحم کر۔
मैं अपना दिल तेरे आगे रखता हूं। ऐ खुदावन तू इस पर रहम कर, मुझे बचा, मुझे निजात दे, मुझे छुड़ा। तो फिर खुदा छुड़ाता है। अगर हम अपने तकब्बर में रहें, जिस तरह यसाया 2 बाब और उसकी 11वीं आयत में हमने पढ़ा है कि खुदा चाहता है इंसान की ऊंची निगाह नीची की जाएगी, यानी कि वो बहुत जो तकब्बर करता है उसको नीचा किया जाएगा। और लिखा है बनी आदम का तकब्बर पस्त हो जाएगा। क्या होगा? बनी आदम का तकब्बर पस्त हो जाएगा। ये यसाया 2 बाब और उसकी 11वीं आयत है कि उसका तकब्बर जाता रहेगा। और साडे इंसान दे विच है कि खत्म हो गया। ਇਹ ਤਕੱਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅਗਰਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਰ ਅੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਵੜੇ। जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो गरीब आदमी ना करे। ਨਾ ਕਰੋ। लेकिन मेरे अजीजों, हमें मसीह जैसा बनना है। मसीह ने ऐसा नहीं चाहा। ਹਲੀਮ ਹੋ ਜਾਓ। जो खुद खाते हैं वो आप गरीब, यतीम, बेवा और अपने साथ भूखे को खिलाएं, क्योंकि खुदा हमसे ऐसी तवक्कुआत रखता है। खुदा हमसे ऐसा कुछ चाहता है। अगर ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਖਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ें खुदा को पसंद नहीं। ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ लेकिन ये कहना चाहिए मेनू मंदी मिल जाए मैं इसको अच्छी चीज दूं। बिल्कुल। ऐसा ज़हन रखो ये कि खुदा भी फिर खुदा बरकत देना शुरू करता है, फिर खुदा जो है ब्लेस करना शुरू करता है। सो मेरे अजीजों, इस तरह हम आजमाए जा रहे हैं। ये आखिरी दौर चल रहा है। आखिरी दौर में जो है इस तरह हम आजमाए जा रहे हैं। खुदा हमसे ऐसी तवक्कुआत नहीं रखता। खुदा नहीं चाहता मेरा बेटा ऐसा करे, मेरी बेटी ऐसी करे। वो खुदा सिर्फ यही चाहता है कि हम हलीम हो जाएं, हम फरोतन हो जाएं, हम इंसाफ करने वाले बन जाएं, जिस तरह मीका 6 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा हुआ है। सो मेरे अजीजों, खुदा हमसे ये तवक्कुआत रखता है। आगे अगर थोड़ी सी आयत और, क्योंकि जो है वो टाइम हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। सो लिखा है तकब्बर पस्त हो जाएगा और उस रोज़ खुदावंद ही सर बुलंद होगा। कौन सर बुलंद होगा? सर बुलंद खुदा नहीं होगा। उसके अलावा कोई ऐसी जो इस ज़मीन पर कोई ऐसी चीज़ नहीं, ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ना ਦਾ था ना है और ना ना होएगा। आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ उसी का नाम था, है और रहेगा, ਆਲਾ ਨਾਮ ਹੀ। और वो है यीशु नाम। सो मेरे अजीजों, उस नाम के अलावा ना दुनिया में कोई, ना जमीन के नीचे, ना आसमान के ऊपर कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा है। खुदा हमसे ऐसी तवक्कुआत रखता है। और आखिर पे क्या होगा? उसी का नाम सरबुलंद होगा। यानी कि इहदा मतलब है पहला असी साडा तकब्बर ते बेवकूफ़ी है। जदों ना ही होंदा सरबुलंद होना है तो फिर हम तो बेवकूफ़ हैं कि अगर तकब्बर करेंगे। सो फिर लिखा है और लबान के क्योंकि रब्बुल फाज का दिन तमाम मगरूरों, बुलंद नज़रों और मुतकब्बरों पर आएगा और वो पस्त किए जाएंगे और लबान के सब ठीक होगा, वो क्या किए जाएंगे? पस्त किए जाएंगे। जितने भी तकब्बर करने वाले हैं, जितने बुलंद नज़र यानी सिर ते अखा रख लेना, वो खत्म किए।
ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰੱਖ ਮੱਥੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਰੱਖ ਲੀਆਂ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਾਫ਼ हाँ पंजाबी साफ। खुदा ये नहीं चाहता, खुदा चाहता है उसे जो है हलीम बन जाए, जो कि हमें बनना जरूरी है। सर बुलंद तो वो है, जेड़ा रहा ते जेड़ा रहेगा। हालेलुया, जिसने सर बुलंदी आपको दी है। सदा क्यों करो ही रहेगा। आमीन, ऐसा ही है, सदा तक वही सर बुलंद था, है और रहेगा, और वो जल्द आने वाला। सो मेरे अजीजों, उसके बाद लिखा है कि मगरूर जो है बुलंद नजरों और मुतकब्बरों पर आएगा और वो पस्त किए जाएंगे। खुदा कहता है वो ढा दिए जाएंगे, पस्त किए जाएंगे। जितने भी मुतकब्बर हैं, जो मगरूरी करते हैं, जो तकब्बर रखते हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये सारी फ़ानी चीज़ें फना हो जानी। और अगर हम कुलसियों की किताब निकालें तो उसमें भी थोड़ा सा हम पढ़ लें, उसके बाद भी टाइम वैसे तो मेरी कोशिश ही कि लूका की अंजील भी वो कर ली जाए, क्योंकि दौर तो ये है कि हम मसीह के वो सारी चीज़ें जो है वो सीखें। कुलसियों उसका 3 बाब है और जी हम 22 आयत से पढ़ेंगे। जी जी, कुलसियों की किताब नए आयतनामे की है। कुलसियों 3 बाब और उसकी 22 आयत हम पढ़ेंगे। लिखा है कि 25 आयत में जो मखसूस जो है वो चीज़ लिखी हुई है, लेकिन मैं पूरा पढ़ने लगा हूँ। लिखा है, ए नौकरो जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, सब बातों में उनके फर्मा बरदार हो। हालेलुया। खुदा ने कहा कि जो फर्मा बरदारी है हमें वो करनी है। ये खुदा का बंदा जो है पलूस रसूल कह रहा है। कुलसियों के नाम उसने खत लिखा है। उस वक्त का दौर जो है नाफरमानी का दौर था, और उनको लिखा है कि ए नौकरों, यानी कि जो मालिक हैं उनको भी और जो नौकर हैं उनको भी, कि ए नौकरों क्या करो तुम, जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, सब बातों में उनके फरमावर। सारियां गल्लां, साडा मालिक कौन है? हालेलुया। हमारा मालिक जो है वो यीशु है, तो हमें उसका क्या रहना। फर्मा बरदार मालिक किसको कहा जाता है? जिसने सब कुछ जो सब कुछ दे रहा है आपको। मालिक वही है जो आपको रिज़्क दे रहा है, जो आपको रोज की रोटी दे रहा है, जिसने आपको काम दिया, जिसने आपको बच्चे दिए, जिसने आपको ये जिंदगी दी, ये सांसें दी, ये खुदा ही है जो हमारा मालिक। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, खुदा जो है वो चाहता है कि हम उसके फर्मा बरदार बन जाए। हालेलुया। सो लिखा है, आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए नहीं। हालेलुया। साफ साफ गल्लां जी, मैं अपने कोलों नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है, ठीक है। और लिखा है, ये एंड पे होगा, एंड वाली किताबों में ये नए ऐदनामे देखें। ये बड़े जो है दुख की बात है कि पता होना चाहिए इन चीज़ों का, और हमें सो फिर आगे लिखा है, आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए नहीं। बाज का दसी आदमियों को खुश करने वास्ते लूका दी अंजील कढ़ लेंदे हो ना, उनके तो अगे वेखो। तो जिस्म के रूह से, ये पढ़ें यहाँ से देखें, 22 बाब से देखें। हम जो पढ़ रहे हैं वो 3 बाब और उसकी 22 आयत से देखें, 22 आयत। और मैं 23वीं आयत पढ़ने लगा हूँ। अच्छा, आदमियों को खुश करने की तरह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि साफ दिली और खुदा के खौफ से। साफ दिली, खुदा क्या चाह रहा है? साफ दिली और दिखावे के जो है खुदा के खौफ से।
ਦਿਖਾਵੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਸ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਆਜੋ ਆਜੋ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਹਾਈਏ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਨਹੀਂ। खुदा हमसे ऐसा नहीं चाहता, खुदा हमसे चाहता है कि इंसाफ करने वाले बने। सो उसके बाद लिखा है कि जो काम करो जी से करो, क्या करो, और जी से करो, ये जान कर करो कि क्या मसीह के लिए करो। हालेलुया। सो हमें जो भी काम करना है अपनी जिंदगी में वो मसीह के लिए करना है और मसीह के फर्मा बरदार रह के करना है, क्योंकि हमारा मालिक जो है वो क्या है, कौन है, मसीह है, यीशु है। उसी ने हमको दुनिया में भेजा है। वो जो मां के पेट ही से जानता था और उसने हमें दुनिया में एक मकसद के लिए भेजा। इसलिए नहीं भेजा कि हम शरीरों के हाथों में जो है चले जाएं, हमारे अंदर तकब्बर आ जाए, हमारे अंदर मगरूरी आ जाए, हम नीची नजरों से लोगों को नीचा करने के लिए नहीं खुदा ने भेजा। खुदा चाहता है कि तुम क्या करो, इंसाफ करने वाले बन जाओ, फरमाबरदार बन जाओ। और वो मसीह के फरमाबरदार अबलीस और शरीर की बातों को जब समझ लेते हैं तो उस पर गालब आ जाओ। शरीर आपको कहेगा मैंने ये काम ठीक है, आपने कहना है कि ऐ शरीर तुझे मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूं कि तू मेरी जिंदगी से चला जा। ऐ नहीं कहना कि मैं तेन यीशु के नाम से अग च सुटना है, ये कहीं नहीं लिखा, ना सुटना ही है, उसने आखिर पे जाना है। ये बहुत बड़ी गलती होती है पास्टरों की बात, यीशु के नाम से मैं तेनू जेड़ा है अग च सुटना है, यीशु के नाम से तेनू मैं जलाना है। खुदा दे कलाम च किते लिखिया ही नहीं कि तुसी यीशु के नाम से जलाओ अबलीस नू। इसका मतलब फिर उस वक्त हम कलाम को पूरा नहीं कर रहे होते, अबलीस उस वक्त काम कर रहा होता है, क्योंकि हम खुदा के अकॉर्डिंग टू खुदा के कलाम की फरमाबरदारी नहीं कर रहे। और ये अगर ये बड़ा लंबा टॉपिक है, ये मैं आपको शॉर्टली बता दूं कि आदम और हवा के पास जब अबलीस आया तो उस वक्त भी शरारत हुई और वो यही थी। यीशु ने कुछ और, खुदा ने उनको और कहा था और अबलीस ने आके उनको गुमराह किया, तो उसने उसी पर जो है उसने आयत जो खुदा ने कही थी वो नहीं बोली बल्कि गलत बोली। सो इस तरह खुदा अगर चाहता है, अगर आप खुदा के फरमाबरदार होंगे, अगर आपके पास जो है कलाम होगा, रूह होगा, और रूह जो है एक आग है जो खुदा ने हमें दी है, एक कुव्वत, एक जोर बख्शा हुआ, वो जब हम में आता है तो हमें जो है वो कुव्वत मिल जाती है, हमें जोर मिल जाता है, हमें पावर मिल जाती है। वो मांगिए खुदा से। जब अबलीस हम पे हैवी हो तो कहें कि मैं तुझे यीशु के नाम से डांटता हूँ, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जब अबलीस तुम्हें सताए तो क्या करना, यीशु को याद करना। ये तो गीत है, और ये लिखा है कि तुम मेरे नाम से उसे डांटना तो वो तुमसे भाग जाएगा। हमें मसीह के नाम से, यीशु के नाम से डांटना है तो वो हमसे भाग जाएगा। अगर तकब्बर आता है, अगर हमारे अंदर नाफरमानी आती है, अगर हमारे अंदर जो है बुरी रूहें आकर बसेरा करती हैं शरीर हमारे अंदर, तो उसे यीशु के नाम से डांटना शुरू करें। तो मेरे अजीजों, खुदा जो है वो उस वक्त हम पर निगाह करेगा। अबलीस को जलाना नहीं, डांटना है, क्योंकि उसका एक वक्त है, उस वक्त पे उसने उस थागड़े में चले जाना। सो हम डांट सकते हैं। सो मेरे अजीजों, खुदा जो है हमसे ऐसे चाहता है। आगे लिखा है क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से उसके बदला में तुमको मिरास मिलेगी।
क्या मिलेगी जी? मिरास। क्या करने से? शरीर की बातों को मानने से? खुदावंद के फर्मा बरदारी करने से, खुदा के कलाम की फर्मा बरदारी करने से, रूह और सच्चाई से खुदा के साथ चलने से। सो मेरे अजीजों, खुदा हमसे ऐसी तवक्कुआत रखता है, खुदा हमसे ऐसा कुछ चाहता है। सो मेरे अजीजों, जो हमें करना बहुत ज़रूरी है। सो आगे लिखा है कि हम आइए पढ़ रहे थे ना, क्योंकि जो कोई जी से करो ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। हमें आदमियों के लिए नहीं करना, हमें खुदा के लिए करना। हमें ये जानना है कि हम कर क्या रहे हैं। हम शरीर की बातों को देख रहे हैं, कर रहे हैं, या उसको जो है अमल में ला रहे हैं, या खुदा की बातों को अमल में ला रहे हैं। इस चीज़ को जो काम करना है उसको अपने अंदर परखें, कलाम रखें। क्या मैं ये काम कर रही हूँ? क्या मैं ये काम कर रहा हूँ? क्या ये खुदा को पसंद है? बुरी चीजों को तर्क करो, बुरी आदतों को। क्या ये खुदा चाहता है मुझसे? सो खुदा जो है फिर आपको बरकत देना शुरू कर देगा। खुदा आपको, जब आप खुदा के कलाम को पूरा करना शुरू कर देंगे। फिर आगे लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से उसके बदला में तुमको मिरास मिलेगी। हालेलुया। फिर हमें मिरास मिलेगी। तुम खुदावंद मसीह की खिदमत करते हो। क्या करते हैं? फिर हम खिदमत करते हैं। जब हम उसकी जो है कलाम को पूरा करते हैं, फर्मा बरदारी करते हैं, फिर हम खुदा के कलाम को, उसकी खिदमत करते हैं, खुदा के कलाम की खिदमत कर रहे होते हैं। सो फिर आगे लिखा है 25वीं आयत में, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा। हालेलुया। जेड़ा वो करेगा वो भरेगा। जेड़ा मैं जो अच्छा काम करांगा, अच्छे काम का अजर मिलेगा, बदला मिलेगा। अगर बुरा करांगा, तकब्बर रखांगा, अगर मैं अपने अंदर बुरी रूहों को, शरीरी रूहों को इजाज़त दे दूंगा, तो मेरे अजीजों वो सारी काम करना शुरू कर देंगे। वो एक बलबला आना शुरू हो जाएगा। अगर हम अच्छे काम करेंगे, खुदा के कलाम की फरमाबरदारी, माँ बाप की फरमाबरदारी, और अपने अंदर जो काम करेंगे ये जान कर करेंगे कि मसीह के लिए कर रहे हैं। आदमी कभी किसी ने सिला नहीं देता, आप सब जानते हैं। जो देना है खुदा ने देना है। खुदा तरफ से। सो मेरे अजीजों, हमें यही करना है और इस पर हमें पूरा उतरना है। क्योंकि जो बुरा करता है खुदा के कलाम से लिया, फिर वो बुरा ही पाएगा। ये जड़ा खुदा भी कुछ नहीं कर सकता। खुदा ने हमें कलाम दिया, हम जिंदा इस ज़मीन पर इसलिए भेजा है कि हम इसको पूरा करें, दूसरे लोगों तक लेके जाएं। अगर हम नहीं करेंगे तो खुदा जो है, अगर हम इस कलाम को पूरा नहीं करेंगे, फरमाबरदारी नहीं करेंगे, शरीरी बातों को मानेंगे, तो फिर हम कभी बरकत नहीं कर सकते, फिर हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। फिर आगे लिखा है कि हम उसका बदला भी, फिर खुदा भी आपकी हमायत नहीं करेगा। खुदा चाहता है कि ये लोग बच जाएं। हालेलुया। फिर लिखा है, वहाँ उसकी तरफ दारी नहीं, वहाँ किसी की तरफदारी नहीं। 25वीं आयत में, वहाँ किसी की भी तरफदारी नहीं की जाए। खुदा हमसे ये कुछ चाहता है। खुदा हमसे चाहता है कि हम बरकत पाएं। खुदा हमसे चाहता है कि हम जो है निजात पाएं, अबदी ज़िंदगी के वारिस बने। लेकिन हम एक दूसरे को, अगर हम ऐसा करेंगे, खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे, तो हम बरकत पाएंगे। अगर नहीं तो फिर खुदा का कलाम साफ साफ बता रहा है कि मैं किसी का तरफदार नहीं। खुदा का बंदा पलूस रसूल इस चीज़ को वाज़िया कर रहा है, और इस चीज़ को जो है उस वक्त कुलसियों के इस ख़त में, कुलसियों के उस
جو ہے خط میں واضح کر دیا ان بندوں کو، بتا دیا خدا پھر آپ کی طرفداری نہیں کرے گا۔ تو میرے عزیزو، خودیاں نکال دو۔ خدا جو ہے ہمیں